our question is according to Arrhenius equation. First we know about that the equation called Arrhenius equation is usually written as K equal to AE raised to power EA upon RT, where pre-exponential factor A is a constant and is called frequency factor. E is activation energy, R is gas constant, T is temperature. Okay, activation energy calculated by the formula rate constant at different temperature. Now according to the Arrhenius equation, let us see first option. A high activation energy usually implies a fast reaction. Let us see. According to Arrhenius equation, this if EA increases, the value of e raised power minus EA upon RT decreases due to negative sign here. This implies that higher the activation energy, lower will be rate of reaction. So this implies that option 1 can be eliminated. Option 1 is not correct. Let us say option 2, rate constant increases with increase in temperature. This is due to greater number of collision whose energy exceed the activation energy. Second option, when temperature approaches to infinity, then e raised to power minus EA upon RT approaches to 0, which means K approaches to A. Then we can see that when the temperature increases, rate constant which is K, here rate constant K increases and approaches to the value close to Arrhenius constant. Okay, Arrhenius constant. So option B is correct here. So this is due to greater number of collision whose energy exceed. Okay, so this option is correct here. Option 2 is correct. Let us see option 3. Higher the magnitude of activation energy, stronger is the temperature dependence of rate constant. As we know that higher the activation energy, rate of reaction decreases. With higher temperature, rate of reaction increases. So high activation energy, that is if activation energy is constant, the rate of reaction is dependent only on temperature. So from here we can say that option C is correct. Option C is correct. Higher the magnitude of activation energy, stronger is the temperature dependence of rate constant. Let us say option 4th. The pre-exponential factor is measure of the rate at which collision occur irrespective of their energy. Let us say 4th option. The pre-exponential factor is always constant for a particular reaction irrespective of temperature. Here. It represents the frequency of collision at a standard concentration. So this D option is also correct here. So option D is also correct. Option 2, option 3, option 4 is the correct answer of this question. Which of the following is correct for the first order reaction? इनमें से कौन सा करेक्ट है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? ठीक है, रिएक्शन दे रखी है उसने 2N2O5 गैस गिव्स 4NO2 प्लस O2 गैस. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट दिया है उसने कि द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद टाइम. जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होती है वो टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? ट्रू है. आपको बता सकता हूँ मैं ऐसे कि जैसे मान लो जो इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन होती है, वो होती है आपकी दैट इज K इक्वल्स टू दैट इज 1/T ln इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय दैट इज एट टाइम t पे कंसंट्रेशन क्या होता है. ठीक है, ये होती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन. ठीक है, तो अगर आप देखोगे कि टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, तो टाइम t अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज KT इक्वल्स टू ln दैट इज A0 डिवाइडेड बाई AT. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. ठीक है, फिर मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ दैट इज आपका e की पावर KT इक्वल्स टू दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A0 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A
एट टाइम t, ठीक है। फिर इसको लिख सकता हूँ मैं कि कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A नॉट e की पावर माइनस KT, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ वैसे। और मैं अगर देखूँ तो टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या था मेरा, ट्रू था, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हाफ लाइफ बढ़ती है। तो आप देखो कि आपकी ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर आप इसकी हाफ लाइफ निकालोगे दैट इज टी टी इक्वल्स टू टी, यहाँ पे क्या होगी, जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो ए नॉट बाई टू हो जाएगी। तो यहाँ से देखो के टी हाफ इक्वल्स टू दैट इज एल एन ए नॉट डिवाइडेड बाई 80 का हो जाएगा आपका ए नॉट बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो ए नॉट से ए नॉट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, दैट इज टी हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज एल एन टू डिवाइडेड बाई के। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी हमारी आ गई, एल एन टू बाई के आ गई टी हाफ की वैल्यू। तो टी हाफ किस पे डिपेंड कर रहा है, टी हाफ के पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और के क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हमें पता है कि जैसे के की वैल्यू होती है के इक्वल्स टू आरएनएच इक्वेशन में के इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है। आप जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे के की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे अगर हम टेम्परेचर को तो हमारा क्या हो गया, के हमारा इंक्रीज होगा। अगर हमारा के इंक्रीज होगा तो हमारे टी हाफ की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या था मेरा, ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जो हाफ लाइफ होती है रिएक्शन की वो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। आप इस इक्वेशन में देखोगे टी हाफ इक्वल्स टू एल एन टू बाई के, इसमें कहीं भी कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन कोई फैक्टर नहीं है। तो हाफ लाइफ जो होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट था मेरा, ये स्टेटमेंट क्या है मेरा, फॉल्स है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है द रिएक्शन प्रोसीड टू 99.6% कंप्लीशन इन एट हाफ लाइफ ड्यूरेशन, ठीक है। जो रिएक्शन होती है वो कंप्लीट हो जाती है 99.6% एट हाफ लाइफ ड्यूरेशन में। तो हम देखते हैं कि एट हाफ लाइफ में कितना हमारा रिएक्टेंट बचता है, ठीक है। मान लो कि इनिशियली मेरा रिएक्टेंट था 100%, ठीक है। अगर एक हाफ लाइफ के बाद अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 होगा। दूसरे हाफ लाइफ के बाद देखोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 25 होगा। थर्ड हाफ लाइफ के बाद देखो कितना हो जाएगा, दैट इज 12.5 होगा। अगर आप फोर्थ हाफ लाइफ का देखो तो कितना 6.25। फाइव हाफ लाइफ का कितना हो जाएगा, दैट इज आपका हो जाएगा, दैट इज ये हो जाएगा आपका 3.125 होगा, ठीक है। आपका ऐसे ही अगर फोर्थ हाफ ये हो गया आपका फर्स्ट टी हाफ, ये हो गया सेकेंड टी हाफ, ये हो गया आपका थर्ड टी हाफ, ये हो गया आपका फोर्थ टी हाफ, ये हो गया आपका फिफ्थ टी हाफ। अगर मैं 6 टी हाफ पे निकालूँ तो 6 टी हाफ पे कितनी हो जाएगी, 3.125 को डिवाइड करोगे 2 से तो आपका 2 1 जा 2, डेट इज 2 1 2 5 जा 2 5 जा 10, डेट इज 2 5 2 1 2 2 5 1 आपको हो गया। फिर 2 6 जा आपको हो जाएगा 3.125 डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे तो 2 1 जा 2 1 और 2 1 जा 2 1, डेट 2 5 10 1, 2 6 जा 12 2 5, ठीक है। इतना हो गया 6 हाफ लाइफ के बाद। सेवन्थ हाफ लाइफ के बाद निकालो तो सेवन्थ हाफ लाइफ के बाद अगर निकालोगे तो कितनी कंसंट्रेशन हो जाएगी, ये 50% है, ठीक है। ये सब परसेंटेज में है, ये सब के सब क्या है, ये परसेंटेज में इतने रिएक्टेंट्स बचे, ठीक है। इसका करोगे अगर आप तो ये हो जाएगा आपका दैट इज 2 7 जा 14, ठीक है। 2 7 जा 14, 1 2 8 जा 16, ओके। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 वो का हो जाएगा 2 2 जा 5, ठीक है। ये हो गया। फिर अगर आप निकालोगे नेक्स्ट 8 हाफ लाइफ के बाद तो ये हो जाएगा आपका 0.39, उसके बाद 0.6 दैट इज 2.5। तो ये क्या है, ये इतनी परसेंटेज बची 8 हाफ लाइफ के बाद। 8 हाफ लाइफ के बाद कितनी परसेंटेज बची रिएक्टेंट की, 0.3, अप्रॉक्सीमेट कितनी हो गई, दैट इज आपकी हो गई 0.4%। 0.4% रिएक्टेंट लेफ्ट हुआ, मतलब कितना परसेंट हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो गया, हमारा कितना 99.6% हमारा जो रिएक्टेंट था वो कंज्यूम हो गया, मतलब इतना परसेंट हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। कितने हाफ लाइफ में, मैं हाफ लाइफ काउंट कर लेता हूँ, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ, 5 हाफ लाइफ, 6 हाफ लाइफ, 7
और 8 हाफ लाइफ में कितनी 99.6% कंप्लीट हो जा रही है। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो यही बोला ना कि जो रिएक्शन थी मेरी 99.6% क्या कंप्लीट होती है 8 हाफ लाइफ में। तो ये स्टेटमेंट में क्या था, मेरा ट्रू था। तो मेरा कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट और मेरा फोर्थ स्टेटमेंट क्या है ट्रू है। देखो कौन से ऑप्शन में है ये। पहला ऑप्शन क्या है, पहला है फर्स्ट सेकेंड फोर्थ, हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा है फर्स्ट और फोर्थ, लेकिन सेकेंड भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वनली फोर्थ ये भी गलत, वनली फर्स्ट ये भी गलत, वनली हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या मेरा सही है। हेलो एवरीवन, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जा रहा है, क्या है क्वेश्चन, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ एल एन आर वर्सेस टाइम गिव्स इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो स्लोप आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में वो भी किस प्लॉट का, एल एन आर वर्सेस टाइम का। तो हमको जो है यहाँ पर बताना कौन सा जो है सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया जा रहा है, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसमें जो है ये आपका रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो हम जो है रेट लिखेंगे R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर जो है ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब 1। ठीक, और जो R मतलब है ये जो रेट है इसको लिखा जा सकता है -dR/dt। ठीक है, ये रेट हो जाएगा इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1 मतलब कंसंट्रेशन ऑफ R। ठीक है, सो इसको जो है इस तरीके से ले आए, और यहाँ पर जो है ये आपका क्या आ जाएगा, डी आर डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू -k/dt। और इसको जो है हमने क्या कर लिया, दोनों तरफ जो है इंटीग्रेट कर दिया, और हमने जो है इंटीग्रेट करने के बाद जो है जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन आती है निकलकर वो क्या आएगी ये हमको यहाँ पर जो है बताना है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये आ जाएगा एल एन आर माइनस एल एन आर नॉट इज इक्वल टू -k/t। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो हमको जो है क्या निकालना है, एल एन आर वर्सेस टाइम के बीच में जो है ग्राफ निकालना है। तो इज इक्वल टू आ जाएगा एल एन आर नॉट माइनस के इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप क्या कर सकते हैं कि ये y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स जो है हमारी इक्वेशन से जो है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो y एक्सिस पर जो है ये आपका क्या है, एल एन आर है। ठीक है, और x एक्सिस पर जो है ये आपका क्या है, टाइम है। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये आपका y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, तो c जो है ये आपका ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है m जो है ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है, दिस इज द स्लोप, स्लोप, और यही तो हमें बताना था। ठीक है, और स्लोप जो है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, -k के। ठीक है, सो ये जो है ये आपका इस तरीके से आएगा, और स्लोप हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू -k। ठीक है, क्योंकि m ही जो है स्लोप होता है, और स्लोप की वैल्यू जो है -k आ रही है। टाइम वर्सेस में जो है ग्राफ होगा एल एन आर वर्सेस टाइम में, तो आपका जो स्लोप आ रहा है वो क्या आ रहा है, -k आ रहा है। और -k जो है ये हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड। सो ऑप्शन थर्ड जो है इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, थैंक यू।